بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جنت میں لے جانے والے وہ کون سے 35 کام ہیں جس کی ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دی ہے۔ جو شخص ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو چلتی ہوں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جنت میں لے جانے والے اعمال یہ ہیں: نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین و اسلام پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنا۔ حضرت سعید رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ 2797۔ نمبر 3، نرم مزاجی، عاجزی، نرم دلی اور حلیم صفات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیے جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ یہ مسلم حدیث میں ہے۔ نمبر 4، غریبی، فقیری اور محتاجی میں مبتلا شخص۔ حضرت حارث بن وہاب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ناتوں لوگ کے نزدیک کمزور لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑیلو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ نمبر 5، سنت ادا کرنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زوجہ محترمہ حضرت امام ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، شرک سے بچنا، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
अल्लाह की बंदगी कर और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहरा, नमाज काम कर, ज़कात अदा कर और रहम वालों से ताल्लुक कायम रख। जब वो आदमी वापस पलटा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन बातों का इसे हुक्म दिया गया अगर इन पर अमल किया तो जन्नत में दाखिल होगा। ये भी मुस्लिम हदीस में है। नंबर 7, खुश इखलाकी तहज्जुद, नफली रोजे रखना और दूसरों को खाना खिलाना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु तआला कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसा महल है, इनके अंदर खड़े हुए तो बाहर की हर चीज नजर आती है और बाहर खड़े हुए तो अंदर की हर चीज नजर आती है। सुभान अल्लाह। एक अराबी ने खड़े होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस आदमी के लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके लिए है जो अच्छी बात करे, खाना खिलाए, बाकसरत रोजे रखे और जब लोग मजे की नींद सो रहे हों उठकर नमाज पढ़े। नंबर 8, अदल करना, पाकबाजी, नरम दिली और दूसरों से सवाल ना करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जाने वाले 3 किस्म के लोग हैं। नंबर 1, हाकिम, इंसाफ करने वाला, सच बोलने वाला और नेक कामों की तौफीक देने वाला। नंबर 9, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो नरम दिल है, शरीफ नफ्स है और लोगों से करीब यानी हर दिल अजीज है, इस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। नंबर 10, 2 या 2 से ज्यादा बेटियों की परवरिश करना। हजरत उन्स बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 लड़कियों को इनके जवान होने तक पाला पोसा, क़यामत के दिन मैं और वो इस तरह आएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों को आपस में मिलाया। नंबर 11, वज़ू के बाद 2 रकअत नफल बाकायदगी से अदा करना। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज नमाज फजर के बाद हजरत बलाल रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, है बलाल, इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा वो कौन सा अमल है जिस पर तुम्हें बख्शिश की ज्यादा उम्मीद है? क्योंकि आज रात मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे चलने की आवाज सुनी है। सुभान अल्लाह। हजरत बलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, मैं इससे ज्यादा उम्मीद अफजा अमल तो कोई नहीं पाता कि दिन या रात में जब भी वजू करता हूँ तो जितनी अल्लाह ताला को मंजूर हो नमाज पढ़ लेता हूँ। नंबर 12, नमाज रोजे की पाबंदी करना और शोहर की अतायत करना, पाकबाजी के साथ रहना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त नमाज अदा करे, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की अतायत करे, क़यामत के रोज उस औरत को कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। नंबर 13, अल्लाह तबारक तआला की राह में जिहाद करना। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने अल्लाह की राह में इतनी देर तक क़ताल किया जितनी देर ऊँटनी का दूध धोने में लगती है, इस पर जन्नत वाजिब होगी। नंबर 14, यतीम की कफ़ालत करना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम की कफ़ालत करने वाला ख्वाह यतीम इसका रिश्तेदार हो या कोई और, वो और मैं जन्नत में इन दोनों उंगलियों की तरह साथ साथ होंगे। सुभान अल्लाह। नंबर 15, मस्जिद बनाना। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं,
میں نے रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह तबारक ताला इसके लिए इसी तरह का घर जन्नत में बनाएगा। नंबर 17, शर्मगाह और ज़बान की हिफाजत करना। हज़रत साहिल बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे ज़मानत दे इस चीज़ की जो दो जबड़ों के दरमियान है यानी ज़ुबान, और इस चीज़ की जो दो टांगों के दरमियान है यानी शर्मगाह, इससे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक आदमी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां औरत दिन को रोज़े रखती है, रात को क़याम करती है, लेकिन हमसायों को अज़ियत पहुँचाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये औरत जहन्नम में है। फिर सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह अजमईन ने एक दूसरी औरत के बारे में अर्ज़ किया, फलां औरत सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करती है और सदका अदा करती है, लेकिन हमसायों को अज़ियत नहीं पहुँचाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये औरत जन्नती है। नंबर 190, अल्लाह तबारक ताला के 99 नाम याद करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला के एक कम 100 यानी 99 नाम जिसने याद किए वो जन्नत में दाखिल होगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और मुस्लिम में भी है। सुभान अल्लाह। नंबर 20, कुरान हिफ्ज़ करना। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है और फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफ़िज़े कुरान जब जन्नत में दाखिल होगा तो इसे कहा जाएगा, कुरान की तिलावत करता जा और दर्जे चढ़ता जा, चनाचा वो हर आयत के बदले में एक दर्जा बुलंद होता जाएगा, हत्ता के आखिरी आयत तक पहुँच जाएगा। जो इसको याद होगी वही इसका मुस्तकिल दर्जा होगा। नंबर 23, अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म सीखना। नंबर 24, अच्छी तरह वज़ू करने के बाद कलमा शहादत पढ़ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करके कलमा पढ़ेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाएगा। नंबर 25, सुबह शाम इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला। और नंबर 26, माँ बाप की खिदमत करने वाला। नंबर 27, तकलीफ दे चीज़ को दूर करने वाला जन्नत में जाएगा। नंबर 28, बीमारी पर सब्र करने वाला। नंबर 30, खातून का अपने शोहर से मोहब्बत करना, ज्यादा बच्चों को जन्म देना, तकलीफ उठाना और शोहर के लिए जुल्म पर सब्र करना। शरीयत की हलाल करदा चीज़ों को हलाल और हराम करदा चीज़ों को हराम जानना। नाबालिग बच्चे के फौत होने पर सब्र करना। नंबर 33, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, इसे मौत के अलावा कोई चीज़ जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही का वजीफा करने वाला जन्नत में दाखिल होगा। नंबर 35, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से वजीफा करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे जन्नत के खजानों में से एक खजाने से आगाह करूं? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर आगाह कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नेकी करने और बुराई से बचने की ताकत अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो मेरे चैनल में नए हैं, लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको
अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।